Hello everyone. So today we're gonna cover or study about ascending tracts. Okay. So before going into just 1 second. Yes. A brief overview. So CNS के अंदर क्या होता है? CNS consists of white matter and CNS consists of gray matter. Okay. तो जो white matter होता है इसके अंदर क्या होते हैं? It consists of axons of the neurons and it appear white because of the oligodendrocytes in the CNS which covers the axons present in the which are a part of neurons. Okay, and in the gray matter they are gray because they consist of cell bodies of neurons and these are present on the outer surface of the cerebral hemisphere and hence forms the cerebral cortex which is gray in color. As you can see here in the diagram, the middle part which is white in color or lighter is the white matter, whereas the outer part which is dark in color and it appears gray is the cerebral cortex. Okay, which is formed by the gray matter. Then so जो ये white matter होता है इसके बहुत सारे modifications होते हैं, ठीक है, which are present in the CNS. तो first is tracts, then association fibers, then commissures. So what are tracts? Tracts basically क्या होते हैं? Bundles of axons होते हैं जो कि up and down move करते हैं within the CNS. और a special feature about them is that they have a common origin and insertion. अब जो tracts होते हैं these can be ascending and these can be descending. So ascending tracts क्या होंगे? जिनके axon will go from lower part of the CNS to the upper part of the CNS. अब obviously if they are going from the lower part to the upper part, they will convey some information. So that's why they are termed as sensory tracts. And whereas descending are reverse of the ascending one. इसमें एक्सॉन मूव कर रहा है फ्रॉम अपर CNS टू द लोअर CNS. अब ये ऊपर और ऊपर से नीचे सिम्टम्स आ रहे हैं, सॉरी ऊपर से नीचे एक्सॉन्स मूव कर रहे हैं तो दे विल गिव सम इंस्ट्रक्शन, सो दैट्स व्हाई दे आर मूव्ड. देन अगर हम ब्रीफ देखें कि सेंसरी सिस्टम जो हमें सेंसरी स्टिमुलस मिलता है जो हम उसको इंटीग्रेट करके एक रिस्पॉन्स देते हैं उसमें बेसिकली क्या किस तरीके से वो होता है. इफ़ आई ब्रीफली टेल यू तो एक सेंसरी रिसेप्टर होता है. सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है? जो कि रिसीव करता है स्टिमुलाई को. स्टिमुलाई कैन बी पेन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एटसेट्रा which are received by the sensory receptors. Sensory receptors के भी there are many types, Meissner's capsule, panicine. So there are GTO. There are many types. Then अब sensory receptor ने ये मान लो पेन का स्टिमुलाई रिसीव कर लिया, he received it. उसके बाद ट्रैक्ट्स कम इनटू प्ले जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ आपका ब्रेन है, ये आपका ट्रंक है, ओके ये आपके लेग्स हैं, these are your hands, ठीक है, and here is your brain and here is your spinal cord. Okay, so in your hand there is a sensory receptor here, then there is sensation of pain coming here or pinprick sensation, let's say. So the sensory receptors which is present in your skin receives the pinprick sensation. Then there is a neural pathway which goes to spinal cord and then the information is sent to the brain. So that neural pathway consists of the ascending tracts. And then in the brain, the pathways end up in the somatosensory cortex which finally integrate the information of the pinprick. देन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये प्राइमरी एफ्रेंस होते हैं जो कि फर्स्ट एनकाउंटर होते हैं. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स इनके पाथवे में आ जाते हैं इन विच ओवर विच द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स साइनैप्स. देयर आर ऑल्सो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स. Now ascending tracts are also known as sensory tracts because they convey sensory information, and afferent tracts because they take information from the outside of the body to the brain.
they pass from lower to upper part of the CNS. That's why they are sensory and afferent. Now, if I talk about a brief about spinal cord, the spinal cord is divided into two parts. This is a dorsal column of the spinal cord, and this is the lateral column of the spinal cord. These two are the lateral column of the spinal cord, and this is the anterior column of the spinal cord. So the ascending tracts pass through these columns of the spinal cord and then eventually end up in the brain. So there is a dorsal column and there is the anterolateral column in the spinal cord. So there are various differences between these two, and जो इसके differences होते हैं we can take and understand it via an example. तो जो हमारा डॉर्सल कॉलम होता है इसको हम एक एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे समझ लेते हैं. ओके, ये NH है, नेशनल हाईवे. और जो हमारा एंटेरोलेटरल कॉलम है ये बहुत पुराना सा वेरी ओल्ड रोड है विच इज़ वेरी टूटा फूटा. सो फर्स्ट टॉक अबाउट द डॉर्सल कॉलम. सो डॉर्सल कॉलम में क्या होता है, ये एक मॉडर्न ट्रैक सिस्टम है. ये जो हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, हाईली डेवलप्ड स्पीशीज हैं जैसे कि ह्यूमंस, उनके अंदर पाया जाता है डॉर्सल कॉलम. अब इट इज़ अ मॉडर्न ट्रैक सिस्टम, तो इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट्स ओनली. इस कॉलम के पीछे मीन्स दिस वन, ये जो डॉर्सल कॉलम मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे. मतलब दिस कॉलम इज स्पेसिफिकली फॉर द असेंडिंग ट्रैक्ट्स AT. ओके, देन अब हाईवे है, तो हाईवे पे हमें कैसी स्पीड चाहिए होती है, सबकी गाड़ियाँ फास्ट दौड़ती हैं, तो देयर इज फास्ट कंडक्शन. अब फास्ट कंडक्शन कब होगा, न्यूरॉन के केस में, नर्व के केस में, जब वो हैवीली माइलिनेटेड होगा. ठीक है, तो दैट्स वाई डॉर्सल कॉलम में जो न्यूरॉन्स होते हैं दीज आर हैवीली माइलिनेटेड एंड दैट्स वाई दे शो फास्ट कंडक्शन. अब इसके अंदर क्या होता है, लेस वैरायटी ऑफ सेंसेशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप हाईवे पे देखोगे, आपने हाईवे पे कभी बैलगाड़ी, साइकिल चलते हुए नहीं देखी होंगी. ठीक है, तो देयर आर लेस वैरायटी ऑफ सेंसेशन सिमिलरली इन दी डॉर्सल कॉलम. और इसमें बहुत ही वेल डेवलप्ड अच्छी खासी सेंसेशन चलती हैं, पास होती हैं. जैसे कि एक हाईवे के ऊपर आपको BMW और Ferrari, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये गाड़ियाँ दिखेंगी. ओके, तो ये वेल डेवलप्ड सेंसेशन है और ये लाइन एंड लेन प्रिंसिपल फॉलो करती हैं. मतलब कि ब्रेन के अंदर इनकी एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि हाँ यहाँ पे मुझे प्रोप्रियोसेप्शन मिलेगा, यहाँ पे मुझे काइनेस्थीसिया मिलेगा. सो दीज आर वेरी एक्यूरेट. इनके एग्जाम्पल वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 point discrimination. So these are very well developed sensations. Now dorsal column consists of two tracts, ascending tracts, fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. So this is about the dorsal column. Let's go to anterolateral column. So it is a primitive tract system. It is very old. Okay, so let's take an example of an road which is very old and it is very टूटा फूटा. Okay, तो it consists of both ascending and descending tracts. इसके अंदर दोनों तरीके के हैं. ठीक है, और इस रोड में क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें चलती है ना. ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत स्लो कंडक्शन होता है. ठीक है, क्योंकि रोड ही ख़राब है ना. तो अब स्लो कंडक्शन है तो क्यों होगा, बिकॉज इट इज़ पुअरली और लेस माइलिनेटेड. जिसकी वजह से इसका स्लो कंडक्शन है और इसके ऊपर मोर वैरायटी ऑफ सेंसेशन प्रेजेंट है. जैसे कि एक पुरानी रोड होगी या जो नॉर्मल रोड होगी हमारी, उसके ऊपर हमें साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, स्पोर्ट्स कार, मतलब ये सब दिख जाएगा जो कि हमें हाईवे पे नहीं दिखेगा. इसके अंदर प्रिमिटिव सेंसेशन, ओल्ड सेंसेशन आती हैं जैसे कि टच, पेन, टिकलिंग, इचिंग, सेक्सुअल सेंसेशंस. इसके अंदर कौन कौन से हमारे ट्रैक्ट्स आते हैं, एंटीरियर वाले ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. एंटीरियर एंटेरोलेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट, स्पाइनोटेक्टाइल ट्रैक्ट एंड स्पाइनोऑलिवरी ट्रैक्ट. सो दीज ट्रैक्ट्स कम अंदर एंटेरोलेटरल कॉलम. आई होप कि आपको अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है. अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन और I will try to resolve that query in the next video.